Hello dear. So this is lesson first and the name of the lesson first is the third level. And this lesson is written by Jack Finney. So you can see photograph, you can see picture of Jack Finney. And now we are going know more about Jack Finney. So let's see. This is a brief introduction. This is a brief autobiography of Jack Finney. So Jack Finney was an American writer. He was an American writer, beta, and born on 2nd October. So we can conclusion, yeah, we can remember his birth date with Gandhiji. Yes, you, because Gandhiji was also born on 2 October 1869, but he also born on 2nd October 1911. So his birth name was Walter Braden Finney. यस यू हिज बर्थ नेम वॉज वॉल्टर ब्रेडन फिने. उसका बचपन का नाम, उसके बर्थ का नाम जो था वॉल्टर ब्रेडन फिने उनका नाम था. He is mainly known for his contributions to the science fiction genre. So he was a writer and he was writing science fiction genre, science fiction stories, science. Yes you, he was yes you writing on science, and this is science fiction. So his most popular novels are The Body Snatchers. It was published in 1955, and Time and Again, that is published in 1970. And he died on 14 November 1995. And he died due to pneumonia. He died due to pneumonia. Yes you देखिए, ये पैदा हुआ है गांधी के जन्म पे और ये मरा है नेहरू के जन्म पे. यस यू, इनकी जो डेथ हुई है वो 14 नवंबर को, जो कि हमारे यहाँ पे हम अपने इंडिया में नेहरू के बर्थडे को 14 नवंबर को एज आई मीन चिल्ड्रन डे मनाते हैं हम. तो 14 नवंबर को वो डाइड हुए एंड born on 2nd October. Mean it is related, yeah, he born with Gandhiji. Okay, so now introduction of the lesson. So we are going know more about what about this lesson is, what about this lesson introduction is. Oh, sorry, the third level is. The third level by Jack Finney is about the harsh realities of life. Harsh realities of life. So what is the harsh realities of life? This is published here, this is mentioned here. So due to war, what happened to the people? It is mentioned in this lesson. So war irreversible consequences, thus leaving people in a state of insecurity. So due to war, people are not happy. Due to war, people are not safe. They are not secure and they feel insecurity. When the war was going on, when the war had happened in a country, in a state, जब ये युद्ध हो जाते हैं तो युद्ध के बाद हमें इनसिक्योरिटी या असुरक्षा हमें महसूस होती है. So it is also about modern day problem and this lesson is about modern day today's problem. तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो मॉडर्न डेज की जो प्रॉब्लम है उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उनको भी यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम मॉडर्न जो हमारी लाइफ है उसमें भी किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है वो भी यहाँ पे बताई है. एंड हाउ कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी ऑफ वेरियस मीन, और किस तरह से लोग अपने आप को बचाने के लिए किस किस तरह के काम करते हैं. इन दिस स्टोरी ए मैन नेम्ड चार्ली. इस कहानी में एक पर्सन है, एक आदमी है जिसका नाम है चार्ली. एंड चार्ली इज हेलुसिनेट्स. हेलुसिनेट्स मीन इल्यूजन, उसको भ्रम हो जाता है, उसको वहम हो जाता है. हेलुसिनेट, 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 हेलुसिनेट. सो दिस इज illusion, illusion उसका भ्रम है. एंड रीचेज द थर्ड लेवल, और वो इस भ्रम में तीसरे लेवल पे पहुंच जाता है. ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और कहाँ पे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. दैट वेयर इज दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज इन न्यूयॉर्क. तो वहां पे जस्ट ओनली 2 लेवल्स वर देयर, 2 लेवल थे वहां पे, एक ग्राउंड में एक टॉप पे, ठीक है ना. बट वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है. अब वो थर्ड लेवल कौन सा होता है, क्या होता है, कैसे वो पहुंचता है थर्ड लेवल पे, वो आज हम इस लेसन में रीड करेंगे, इसमें पढ़ेंगे. सो नाउ द एक्सप्लेनेशंस गिवन हियर. You can see this is the picture of Grand Central Terminal. Yes, Grand Central Terminal की ये फोटोग्राफ है, ये पिक्चर है. देखिए अब मैंने क्लिक किया इस पिक्चर पे तो आया है लिखा हुआ, देखिए दोबारा से. यस बेटा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल. तो ये है ग्रैंड सेंट्रल. यस यू, ये स्टेशन है, पोर्ट है. तो इस पे वो पहुंचता है
कैसे पहुंचता है? बिकॉज ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हिज वर्क and he has to take train, he has to take a traffic या train from there this station, but he has left because he was late, और वो लेट हो जाता है, उसकी ट्रेन छूट जाती है। तो इस तरह से वो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है, तो वहां पे वो दूसरे लेवल पे जाता है, तो वहां से फिर से उसकी ट्रेन छूट जाती है। फिर वो वापस फर्स्ट उस पे आता है, तो फिर से वहां पे ट्रेन नहीं होती, तो ऐसे घूमते घूमते उसको एक और लेवल मीन वो ख्वाबों में, ख्यालों में, उसके वहम में, उसका जो वहम होता है उस वहम में वो बहुत आगे यानी कि थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, चला जाता है। ओके सॉरी, एक बार बेटा। नाउ the presidents mean of the New York Central, presidents mean main officers of the station. That is the station, which station you can see in the picture. In this picture there are many presidents, there are many officers, there are many, yes, you main officers of the New York Central Railway, New York Central, yes, you terminal. Yes, you New Haven and Hartford Railroad will swear on a stack of timetables, and there were only two. So the peoples mean New York, New Haven. These were the people. Hartford Railroads. These are two levels. What are these? New Haven and Hartford Railroads. यहाँ पे दो ट्रैक हैं, यहाँ पे दो लेवल हैं। लेवल एक का नाम है न्यू हेवन लेवल, दूसरे का नाम है हार्टफोर्ड रेलरोड्स। ये दो लेवल है और इसके ऊपर वो कसम खा सकते हैं, और टाइम टेबल भी इन दोनों ही लेवल का बना हुआ है। ओके सो व्हाट द प्रेसिडेंट मीन ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं? द ऑफिसर्स कह रहे हैं कि भाई हमारा जो न्यूयॉर्क सेंट्रल यानी कि हमारा जो न्यूयॉर्क टर्मिनल है, यानी कि न्यूयॉर्क जो हमारा रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के सिर्फ दो ही पार्ट हैं, यानी कि दो ही लेवल हैं। और इस बात के लिए ओके वहां के जो ऑफिसर्स हैं वो कसम भी उठाने के लिए तैयार हैं, मैं कसम उठा लूंगा। ओके और टाइम टेबल भी उन्होंने बनाया है सिर्फ दो ही लेवल का, और वो दो लेवल के नाम भी यहाँ पे दिए हैं, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड। अब क्या होता है कि बट आई से देर आर थ्री, बट आई से मीन चार्ली। जो चार्ली है वो नरेटर है स्टोरी का, वो बता रहा है कि नहीं यहाँ पे मैंने आई से देर आर थ्री, कि मैं कहता हूं कि दो है, तीन है सॉरी। तो जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि दो लेवल हैं, चार्ली है वो कह रहा है कि तीन लेवल है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं तीसरे लेवल पे गया था। चार्ली कह रहा है कि क्योंकि मैं तीसरे लेवल पे गया था ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैं उस पर चला भी था। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट, और मैंने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से, ऑफ माइंड, मेरा एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है और मैंने उससे भी बात की थी, among others, और दूसरे लोगों से भी मैंने बात की about it, about third level. So what is the issue? Issue is that there are two level only on the station, but Charlie is speaking that there are three levels, not two but three levels are there. The officers are saying that no, only two are there, but he is saying that no, and my psychiatrist friend and among people also saying that there are three levels of the station. So I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a walking dream with fulfillment. So that was our walking dream. That was a daydream कि हम दिन में सपना देखते हैं, उस सपने का पूरा होना है हमारा तीसरा जो लेवल है। He said I was unhappy, कि मैं दुखी था। That made my wife kind of mad. Okay, मेरी वाइफ मुझे तंग कर रही थी। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity. जो कहता है कि आज की जो दुनिया है वो सुरक्षा, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ इट। आज की दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एक इंसान के साथ में, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं उन सभी प्रॉब्लम से बचना चाहता हूँ। हु इज आई हियर? आई इज चार्ली। वेल हु डज नॉट, हाँ कौन नहीं बचना चाहता? एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई बचना चाहता है आज की प्रॉब्लम से। So, but they would do not wander down into any third level at Grand Central Station. बट वो बचने के लिए लोग जो है ना तीसरे लेवल पे कोई नहीं जाता है, और तीसरा लेवल किसका है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा लेवल है, उस तक कोई नहीं पहुंचता है। बट दैट इज द रीजन, ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और इसीलिए यही कारण था कि मैं तीसरे लेवल पे चला गया, एंड ऑल माई फ्रेंड्स
आर एग्रीड, और मेरे सारे दोस्त इस बात से एग्रीड हैं, सहमत हैं। ओके, उसने कहा कि मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास भी गया, मैं एक डॉक्टर के पास भी गया। जो साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? मनोचिकित्सक, जो कि दिमाग की बीमारी का इलाज करते हैं। उसने कहा कि हाँ भाई, तीसरा लेवल हो सकता है। सो एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, और उसने उन लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल भाई ऐसा हो सकता है। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई स्टैम्प कलेक्टिंग, मैं पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ, मैं डाक टिकट कलेक्ट करता हूँ। इट इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो ये एक क्या है? ये एक टेम्पररी वर्क है अपने आप से, अपनी रियलिटी से बचने का। रियलिटी क्या है? दिस लाइफ इज फुल ऑफ रेज, दिस लाइफ इज फुल ऑफ फियर, दिस लाइफ इज फुल ऑफ वॉर। So that's why I have to save myself from these all worries. So that's why he was collecting tickets. तो भाई वो अपने आप को प्रॉब्लम से बचाने के लिए अपने आप को बिजी रखता है। और किस में बिजी रखता है अपने आप को? वो अपने आप को बिजी रखता है किसमें? वो अपने आप को बिजी रखता है, तो वो रखता है इन सभी चीजों में कि टिकट कलेक्टिंग को उसने मतलब शुरू कर दिया। ओके, टिकट कलेक्टिंग करना या और चीजें करना, लोग करते हैं ऐसा कुछ अपने आप को बिजी रखने के लिए, ताकि उनका ध्यान जो है बेकार की चीजों की तरफ ना जाए। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। बट मेरे जो दादाजी थे, उनको इन सभी चीजों से बचने के लिए किसी रिफ्यूज की जरूरत नहीं थी, किसी शरण की जरूरत नहीं थी, कुछ दूसरा काम करने की जरूरत नहीं थी रियलिटी से। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, क्योंकि मेरे दादाजी के दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। फ्रॉम ऑल आई हियर आई एंड ही स्टेयर्ड माई कलेक्शन। सो फ्रॉम ऑल आई हियर, ओके, सबसे मैंने सुना क्या? एंड ही स्टेयर्ड माई कलेक्शन, जब उसने मेरे पोस्टेज कलेक्शन को देखा। इट इज अ नाइस कलेक्शन टू, तो एक बहुत अच्छा कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ वॉर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर एंड शो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नाउ। और आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो टी रूजवेल्ट थे अमेरिका के, वो भी पोस्टेज को कलेक्ट करते थे, वो भी टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते थे। तो अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? अब हमने इस पैसेज में पढ़ा है कि किस तरह से लोग अपना शौक पूरा करने के लिए, अपने आप को प्रॉब्लम से बचाने के लिए एक एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। और किस तरह की एक्टिविटी? कि वो पोस्टेज स्टैम्प एक्टिविटी कर लो। यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। कोई क्या करता है कि भाई जो कोई गार्डनिंग का शौक पाल लेता है कि भाई मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैं उन बातों के बारे में नहीं सोचूंगा, तो समस्याएं मेरी खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं? कोई ना कोई शौक अपना पाल लेते हैं, ताकि वो अपने आप को बिजी रख सकें और बेकार की बातों से अपने आप को बचा सकें। एनीवे, हियर व्हाट हैपेंड टू ग्रैंड सेंट्रल। तो चलो छोड़ो उस बात को, अब ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हो रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं। अब ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ? अब ये पिक्चर भी थोड़ा सा, इस पे भी ध्यान रखना है हमें। वन नाइट लास्ट समर, गर्मियों में एक रात, आई वर्क्ड लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस से लेट चला। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन, ओके, मैं बहुत जल्दी में था क्योंकि मुझे अपने शहर जाना था। एंड टू माई अपार्टमेंट, अपने घर पहुंचना था। सो आई डिसाइडेड टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो इसीलिए मैंने सबवे, छोटा रास्ता लेने का सोचा। और वो छोटा रास्ता कहाँ से था? ग्रैंड सेंट्रल से था। बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि वहां पे जो ट्रेन थे वो बस से ज्यादा तेज चल रही थी। Okay, so now you can see in this picture, yes, there is a person, and that person is a Charlie, and that Charlie was coming back from his office, and he was going to house, and he was in hurry because he was late, and yes, he didn't took the bus. He didn't take the bus, but he took the train because he wanted to reach his house early. क्योंकि वो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसने बस की बजाय ट्रेन को लेने का सोचा। और वो ट्रेन लेता है, सबवे मीन जो छोटा रास्ता है उसके लिए वो ट्रेन में चलता है। सो नाउ आई डू नॉट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि बट मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आई जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं एक सिंपल सोबर आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग ए 10 गबार्डिन शूट, और मैंने एक बहुत ही अच्छा सा सूट पहने रखा है। एंड स्ट्रा हैट, और एक स्ट्रा, एक घास की टोपी, एक घास का हैट मैंने पहन रखा है विद ए फैंसी बैंड, और उस घास के टॉप के ऊपर एक फैंसी बैंड भी पहना हुआ है। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं बहुत सारे लोगों के पास से गुजरा, who looked just like me, जो मेरी तरह ही मुझे दिख रहे थे।
एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था. आई जस्ट wanted टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ. मैं सिर्फ घर पहुंचना चाहता था, मेरी अपनी वाइफ के पास पहुंचना चाहता था, जो का नाम लुइजा है. ओके, लुइजा. तो अब यहाँ पर दो करेक्टर आ चुके हैं बेटा. एक करेक्टर है यहाँ पे चार्ली, दूसरा करेक्टर है लुइजा. और लुइजा कौन है? ये लुइजा है चार्ली की वाइफ. So now he was going home. He was going home from his office, and he was late, and he took the train. He didn't take bus because bus was taking much time, and he took the subway. So that's why he was going by train, and that's why he reached on Grand Central Station. So next one is I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. So Vanderbilt, this is a building. So Vanderbilt Avenue से वो Grand Central Station की तरफ मुड़ा and went down the steps to the first level. और वो first level पे आगे बढ़ गया. Where you take trains like the 20th century, जहाँ पे आपको नई सदी की 20th century की तरह की ट्रेन मिलती थी. Then I walked down another right to the second level, और फिर मैं वहां से मुड़ करके मैं दूसरे लेवल पे पहुंचा. Where the sunburn trains live from, और वहां से जैसे सबर्बन, ओके, उस जगह के लिए, उसके घर के लिए ट्रेन थी, वो छूट चुकी थी, जा चुकी थी. Ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost, और फिर से उसने ट्रेन, वो उसके नीचे भी थी, वो भी छूट चुकी थी. That is easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. और उसको हर बार अलग अलग रास्तों से निकलना, अलग अलग दरवाजों से जाना पसंद था. तो once I got into a tunnel, तो एक बार वो क्या करता है कि वो एक टनल में घुस जाता है. About a mile long, वो टनल जो थी वो करीब 1 मील लंबी थी. एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और उस टनल से होते हुए 1 किलोमीटर चलने के बाद वो रूजवेल्ट के होटल पे पहुंचता है. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस, और दूसरी बार फिर से वो एक ऑफिस पे पहुंचता है, ऑफिस में आता है. बिल्डिंग एंड 46 स्ट्रीट, जिसमें 46 स्ट्रीट पे वो बिल्डिंग थी, ऑफिस था. देयर ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स अवे, और जो ही 3 ही ब्लॉक दूरी पे था. तो बेटा इस में लेसन में यस यू हम यहाँ तक करेंगे. बाकी का